Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will continue our topic for this week, which is business management, and we will cover the remaining elements of directing. I have already covered motivation and communication, and now we will move on to the remaining elements of directing, which are leadership and supervision. So if you have any queries, drop them in the comment box. I will help you resolve them. And just to remind that through my channel, I am here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So students, let's move on to another element of directing, which is leadership. So leadership is a process which managers use to guide, direct and influence the work of a subordinate in the desired direction. It is the ability of manager to induce the employee to work confidently and with vigor. So in simple words, we can say that leadership skills allow a manager to influence others for the realization of goals, and for the leader must have an eye set on the future and motivate people to. So leadership एक स्किल है, एक एबिलिटी है मैनेजर के पार्ट पर, जिसके थ्रू वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को ही कैन इन्फ्लुएंस and help them to realize their goals. And the leader must have an eye set on the future. He must be looking at the upcoming events, and along with that he must motivate his people to achieve the visions. So Keith Davis की definition है leadership के लिए. उन्होंने क्या कहा था? That leadership is the ability to persuade others to seek defined objectives enthusiastically, and it is the human factor which binds a group together and motivates it towards the goals. So as per Keith Davis, leadership is the ability to persuade others to seek defined objectives enthusiastically. So Keith Davis की definition के according क्या है कि leadership is the ability to persuade others. ठीक है, through leadership the manager can persuade others, यानी कि किसको persuade कर सकता है? वो अपने employees को या subordinates जो भी उसके under में है, and he can help them to achieve their objectives and that too enthusiastically. ठीक है, एक और डेफिनेशन आप लीडरशिप की पढ़ सकते हैं. क्नूड्स एंड ओडोनल की डेफिनेशन है लीडरशिप को. उन्होंने क्या डिफाइन किया है? दैट लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सुपीरियर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील. तो सब चीज़ें यहाँ पे आप डेफिनेशंस में देख रहे होंगे. दैट कीथ डेविस ने मेंशन किया टू परफॉर्म द वर्क हाउ enthusiastically, and Knudsen एंड ओडोनल ने क्या कहा? विद कॉन्फिडेंस एंड जील. सो ये चीज़ें ज़रूरी हैं दैट थ्रू लीडरशिप द एम्प्लॉय शुड गेट सो मोटिवेटेड, सो convinced to work that he must perform his work willingly, happily, enthusiastically and with confidence and zeal. सो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं? लीडरशिप के ही थ्रू आती हैं. अगर लीडरशिप ना हो तो शायद जो है मैनेजर जो भी इंस्ट्रक्शंस जो है पास ऑन करेगा अपने एम्प्लॉय को, वो उसे कंप्लीट शायद ही करे, और अगर नहीं कर भी दे तो शायद इतनी खुशी से ना करे. तो वो सारी चीज़ें कैसे आती हैं? दैट जील टू परफॉर्म एनीथिंग, ये सारी चीज़ें लीडरशिप के ही थ्रू आ सकती हैं. जो मैनेजर होता है ही मस्ट फॉलो दिस लीडरशिप एबिलिटी. सो जो मैनेजर होता है ही मस्ट यूज हिज लीडरशिप एबिलिटीज टू क्रिएट दैट जील अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स टू वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट और अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप के कैसे कौन कौन से फीचर्स हैं वो देख लेते हैं. सो लीडरशिप इज़ एन इंटरपर्सनल प्रोसेस वेयर अ मैनेजर इन्फ्लुएंसेस एंड गाइड्स वर्कर्स फॉर अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो थ्रू लीडरशिप मैनेजर जो है इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है, ये तो हमें पता है, बट दिस इज़ एन इंटरपर्सनल प्रोसेस. सो इट इज़ बिटवीन वन पर्सन टू अनदर, और ये दो या दो से ज़्यादा लोग जो इन्वॉल्व हैं वो कौन है? मैनेजर और उसके सारे जो वर्कर्स उसके अंडर में हैं, वो सारे लोग इस इंटरपर्सनल प्रोसेस का पार्ट होते हैं. सो लीडरशिप इज़ एन इंटरपर्सनल प्रोसेस. नेक्स्ट कम्स अ गुड लीडर नीड्स टू बी इंटेलिजेंट, मैच्योर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. सो लीडर कैसा होता है? जिसे लोग फॉलो करें. तो फॉलो किसे करते हैं? who should be intelligent, who should be mature and must have an strong personality. So strong personality का ये मतलब नहीं है कि उसकी जो है biceps हो तभी वो strong personality होगा. Personality को define बहुत सारी चीज़ें करती हैं आपकी. Someone who is confident, someone who have good communication skills, good motivation skill, someone who is integrated, someone who has honesty, someone who has open mind. ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना,
ये सारी चीज़ें जो है आपकी पर्सनालिटी में काउंट होती हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में, जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसका अच्छा हो, डिसिसिवनेस हो और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उस पर्सन को, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। ठीक, लीडरशिप इज़ अ ग्रुप प्रोसेस एंड नीड्स एटलीस्ट 2 और मोर पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सो कम्युनिकेशन में भी ये फैक्टर था कि इट इज़ अ प्रोसेस एंड इट नीड्स एटलीस्ट 2 पीपल। सो यहाँ लीडरशिप में भी यही है दैट लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस, it's a group process in fact, and it needs at least 2 people, yeah, more than that, to interact with each other. And the next characteristic is a leader can shape and mold the behavior of a group in the direction he wants. So एक leader, so through leadership, जो leader है, he if he wishes to, he can mold and shape up the behavior of his people, जो भी उसके ग्रुप में उसके फॉलोअर्स हैं, he can mold them their behavior and in the direction he wants. तो इस तरह से मैनेजर क्या करता है, वो इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को के बिहेवियर को चेंज करता है, मोल्ड करता है या शेप करता है कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के प्रति और अपने जो उनके पर्सनल गोल्स हैं उनके लिए इस तरह से डेडिकेटेड रहे, इस तरह से वर्क करता रहे कि वो हर टास्क जो उसे असाइन की जाए उसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैरी आउट कर सके. So next comes, there is no best leadership style. A good leader understands that he needs to tackle this situation as they arise. So बहुत सारी leadership styles होती हैं, but जो उनमें से जितनी भी styles हैं leadership styles, वो उसमें कोई भी best नहीं है, सारी जो है अपनी अपनी जगह पर सही हैं. तो एक good जो अच्छा एक leader होता है, a good leader, he must understand that he needs to tackle the situation as they arise. वो कैसा भी leader हो, autocratic हो, democratic हो या उसमें free rein leadership की क्वालिटीज़ हो, जैसा भी लीडर हो वो, उसे बस ये समझना ज़रूरी है दैट ही नीड्स टू टैकल द सिचुएशन एज दे अराइज. जिस तरह से कोई सिचुएशन अराइज हो रही हो वो उसको जो है इमीडिएटली ही मस्ट टेक सम एक्शन टू टैकल इट. सो स्टाइल्स कैसे कैसे होती हैं लीडरशिप स्टाइल्स, एक बार थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए. अथॉरिटेटिव होती है यानी उसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी बोलते हैं. एक होती है डेमोक्रेटिक यानी उसमें पार्टिसिपेटिव, जैसे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे सबकी पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक स्टाइल हो गई. नेक्स्ट कम्स द फ्री रीन, यानी कि फ्री रीन के थ्रू क्या होता है, does not lead but he leaves the group entirely to itself. वो खुद अकेले लीड नहीं करता, वो अपने ग्रुप को ही लीड करने के लिए जो है पूरे ग्रुप को पे जो है लीडिंग जो पार्ट होता है वो सारी चीज़ें ग्रुप पे जो है ही लीव्स ऑन अपॉन द ग्रुप. एंड ही जो लीडर होता है ही डिपेंड्स लार्जली अपॉन द ग्रुप टू इस्टेब्लिश इट्स ओन गोल्स एंड वर्क आउट इट्स ओन प्रॉब्लम्स. सो इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो लीड तो ज़रूर करता है सबको, बट वो खुद उन पे ही डिपेंड करता है अपने ग्रुप पे कि वो जो है अपने गोल्स खुद सेट आउट करें और जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं है ना उन गोल्स को अचीव करने में वो खुद ही उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें. तो ये क्या होता है, लेजी स्फेयर या फ्री रीन लीडर भी बोलते हैं इसको. एंड डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो होती है उसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है ही गिव्स ऑर्डर्स आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप मेंबर्स. तो अगर वो अपने ग्रुप मेंबर्स से कंसल्ट करता है, जैसे डेमोक्रेसी में होता है एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड, एवरीवन्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, तो इसी तरह से जो है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव जो लीडरशिप स्टाइल होती है उसमें भी सबका जो है पार्टिसिपेशन काउंट होता है. और ये जो है सबसे कंसल्टेशन के बाद ही अपने ग्रुप मेंबर्स के से कंसल्टेशन के बाद जो लीडर होता है वो कोई भी ऑर्डर्स को फॉर्मुलेट करता है, ठीक है. So next comes, how can a manager cultivate a leadership attitude? So here are some behavioral patterns that are important for a leader. So देख लेते हैं कोई एक लीडर जो है उसके leadership attitude एक मैनेजर के अंदर में कैसे आ सकते हैं. So if a leader is always aware of the factors which can lead to success as well as failure, तो he will be able to lead properly. So awareness बहुत ज़रूरी जो है trait है, importance है, ठीक है. तो सो जो लीडर है ही मस्ट बी ऑलवेज अवेयर ऑफ द फैक्टर्स विच कैन लीड टू सक्सेस और फेलियर्स एज वेल. सो फर्दर ही इज़ क्लियरली अवेयर ऑफ हिज जॉब एंड द पीपल इन्वॉल्व एंड द सिचुएशनल कंसिडरेशंस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. सो अगर जो लीडर है ही इज़ अवेयर अबाउट हिज जॉब, अबाउट हिज पीपल एंड अबाउट द सिचुएशंस, तो ही कैन कंसिडर फॉर मैक्सिमम.
सो इसलिए अवेयरनेस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड. नेक्स्ट कम्स एम्पैथी. सो एम्पैथी इज द एबिलिटी टू लुक एट द सिचुएशन फ्रॉम समवन एल्स पर्सपेक्टिव. सो एम्पैथी एंड सिंपैथी अलग अलग होते हैं. सिंपैथी बहुत लोग सोचते हैं एम्पैथी का शायद कुछ रिलेशन है इससे, ऐसा कुछ नहीं है. अलग अलग हैं दोनों वर्ड्स, कोई भी मीनिंग आपस में रिलेटेड नहीं होती. एम्पैथी का मतलब ये होता है द एबिलिटी टू लुक एट अ सिचुएशन फ्रॉम समवन एल्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जिस सिचुएशन को कोई पर्सन खुद जो है फेस कर रहा है, अगर हम उसकी जगह खुद को रख के देखें और उसकी सिचुएशन को फील कर सकें, तो ये जो है सब किसी और का पर्सपेक्टिव अगर हम समझ सकें अगर खुद को उस सिचुएशन में रख के, तो हम उसे एम्पैथी बोलते हैं. दिस इज़ द एबिलिटी टू लुक एट द सिचुएशन. सो दिस इज़ अ क्वालिटी विच इज़ अ मस्ट फॉर अ गुड लीडर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. In an organization, many managers assume that their subordinates will look at the situation as they perceive them. However, every individual has a different experience and perceives situations differently. So, therefore, it is important for managers to have empathy as a personality trait so that they can put themselves in the position of their subordinates and understand their issues and perspectives. सो एम्पैथी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा बहुत जगह पे देखा गया है कि ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या अज्यूम करके चलते हैं कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उस सिचुएशन को उसी तरह से हम देखेंगे, उसी तरह परसीव करेंगे जैसा मैनेजर उन्हें बता रहा है. बट क्या है कि एवरी इंडिविजुअल दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड परसीव सिचुएशंस डिफरेंटली. तो उनके लिए हर चीज़ जो है उनका परसेप्शन हर सिचुएशन के लिए अलग हो सकता है उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से. सो इसलिए जो मैनेजर है he must have empathy as a personality trait. So वो जो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स है, उसकी सबॉर्डिनेट्स की प्रॉब्लम्स है, उनकी इश्यूज़ हैं, उसे समझने के लिए वो खुद को जो है एम्पैथी जो ये ट्रेट है इसका यूज़ कर सके, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड हिज सबॉर्डिनेट्स इन अ बेटर वे. सो एम्पैथी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट. नेक्स्ट कम्स ऑब्जेक्टिविटी. Many managers tend to have a preconceived notion about the situation or the attitude and behavior of their subordinates. So, usually these notions tend to guide them in the wrong direction and also away from the team. So, therefore, they must learn to the skill of observing problems and their probable causes objectively. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिविटी क्यों इम्पॉर्टेंट है एज अ ट्रेट? बिकॉज सम मैनेजर्स माइट हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन दैट, यानी पहले से ही जो वो एक जो है अपनी एक परसेप्शन, एक धारणा बना लेते हैं, प्री कंसीव्ड नोशन इसे बोलते हैं, ठीक है, अबाउट अ सिचुएशन और द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. तो वो ये सोचते हैं कि हर एक सबॉर्डिनेट काम नहीं करना चाहता है, तो ऐसा अगर मैनेजर सोच रहा है तो ये एक प्री कंसीव्ड नोशन आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं. ठीक है. सो यूजली दीज नोशंस टेंड टू गाइड देम इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम द टीम. सो अगर मैनेजर इस तरह की जो है पहले से ही अपनी एक थिंकिंग बना के चलेगा कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो काम ही नहीं करना चाहते, उनका एटीट्यूड गलत है जो है कंपनी की तरफ और ये सारी चीज़ें, तो दिस विल ड्रैग हिम अवे फ्रॉम द टीम. ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली और ये सारी चीज़ें उसे एक रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जो है गाइड करती जाएंगी. सो मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि ही मस्ट लर्न द स्किल ऑफ ऑब्जर्विंग प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रोबेबल कॉज दिस ऑब्जेक्टिवली. सो अगर मैनेजर हर एक जो है प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करे और उसके पीछे का जो कॉज है उसको समझने की कोशिश करे, तो ही विल and then he will be able to understand the attitudes and behavior of his subordinates in a better way. Next comes self-awareness. So no manager wants to be unfair or overly emotional to his dealings and thinks that he is doing a good job. So however his subordinates might think otherwise. So therefore a manager should always know how his subordinates perceive him and the effect of his attitude and behavior towards them. So in fact this can be helpful for fine tuning of the leadership styles to suit the team. Self awareness can also help the manager improve and cultivate habits which can garner better support from the subordinates. So इसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं.
लेट्स अज्यूम दैट एक मैनेजर है, उसके कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं, और उसके सबॉर्डिनेट्स ये जो है सोचते हैं, ये परसीव किया है उन्होंने अपने मैनेजर के लिए दैट ही इज़ अ वेरी एंग्री पर्सन एंड ही माइट नॉट लाइक एनी सजेशंस एंड आइडियाज़ फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स। तो वो क्या करेंगे, वो अपने तक ही रखेंगे अपने आइडियाज़ को। कोई चीज़ हो सकता है उनके आइडियाज़ से जो है इम्प्लीमेंट करके बेटर हो जाती, बट दे वोंट कन्वे इवन, ये सोच कर कि शायद उनका मैनेजर जो है इस तरह की कोई चीज़ को लाइक ही ना करे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, परसेप्शन अगर किसी तरह का क्रिएटेड है अबाउट मैनेजर, तो ही मस्ट बी नोइंग इट। इसी को आप सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। तो मैंने थ्रू सेल्फ अवेयरनेस दिस ट्रेट, मैनेजर मस्ट बी नोइंग what his subordinates perceive about him and also the effect of his attitude and behavior towards them. So जो मैनेजर का एटीट्यूड है, बिहेवियर है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उसके सबॉर्डिनेट्स पर, उसे ये भी समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा ना, ये इफ़ेक्ट ये भी हो सकता था कि उसके सबॉर्डिनेट्स ने उसे क्यों एक एंग्री पर्सन समझ लिया, हो सकता है वो उसके एटीट्यूड्स या बिहेवियर की वजह से हुआ हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सब कुछ भी सेल्फ अवेयरनेस में ही आता है। तो सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू मैनेजर जो है अपनी ही हैबिट्स को, अपनी ही जो है खुद को इम्प्रूव कर सकता है एंड ही कैन गार्नर बेटर सपोर्ट फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स। सो ये सारी चीज़ें सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू उसके सबॉर्डिनेट्स का सपोर्ट उसे बेटर वे में मिल सकता है, अगर वो ये समझ ले कि उसकी जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है टुवर्ड्स हिज सबॉर्डिनेट्स, वो किस तरह से उन्हें अफेक्ट करता है। So this is all for today. Hope the topic is clear to you all. The last element of directing, that is supervision, will be covered in the upcoming video, and also the last managerial function, which is controlling, will be covered in the next video. So you can convey your doubts in the comment box or through email, and you can find my mail ID in the description box. So stay tuned to my channel. और अगर आपको PHU BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल इंक्लूड देम एज वेल. So stay home, stay safe, happy learning.